by using Gauss law, by using Gauss law, phi equal q upon epsilon naught. This is equation second. But what is q? Q is charge enclosed this imaginary surface, but we take it q dash. कितना चार्ज टोटल इसके अंदर कंटेंट है, दैट इज q. इमेजरी सरफेस के अंदर कितना मानना पड़ेगा हमें, q डैश. क्लियर. अब इसके बाद बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चार्ज q डैश क्या है, चार्ज enclosed by imaginary surface. By using equation, by using equation first and second, so what is the result, E into 4 pi r square, this is equal to q dash upon me epsilon naught. But you have to find out E, then value E equal q dash upon 4 pi epsilon naught r square. This is equation थर्ड. तो इस केस में जब पॉइंट P इनसाइड लाइज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फॉर्मूला ये आता है. लेकिन यहां हमें q डैश की वैल्यू मालूम नहीं है, हमें टोटल चार्ज q कितना इसके अंदर मौजूद है वो तो हमें मालूम है, लेकिन इस इमेजरी सरफेस में कितना q डैश है वो हमें मालूम नहीं है. तो हमें q डैश को जो है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फिर टू फाइंड q डैश, टू फाइंड आउट q डैश, टू फाइंड आउट q डैश. तो हाउ विल यू फाइंड q डैश, देखिए, what is radius of given spherical portion capital R, then volume 4 upon 3 pi r cube, 4 upon 3 pi r cube, contained charge q, then unit volume equal q upon 4 upon 3 pi r cube. और ऐसे भी सकते हैं q 4 upon 3 pi r cube, ये वैल्यू इसके शिफ्ट हो जाएगी. तो हमने कितना वॉल्यूम कंसीडर किया, फॉर वॉल्यूम दिस इज for volume 4 upon 3 pi r cube, then charge q dash will be q upon 4 upon 3 pi r cube multiply by 4 upon 3 pi r cube. But here 4 upon 3 is cancelled out, pi is pi cancelled out, then q dash equal this will be q r cube upon में capital R cube. Clear? So this is value of q dash. We can write equation 4. Again, एक बार फिर से देखिएगा, you have to find out value q dash. What is q dash? Q dash is charge which is enclosed by this imaginary surface. So how will you find out it? To find out this charge q dash which is contained in this part, then we can write total charge q किसमें मौजूद है, 4 upon 3 pi r cube में. तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज कंटेंट होगा, then we can write q upon 4 upon 3 pi r cube by unit law. नाउ हमने कितना वॉल्यूम कंसीडर किया था स्मॉल r रेडियस के लिए, 4 upon 3 pi r cube में कितना चार्ज कंटेंट है, q डैश. लेकिन इतने वॉल्यूम के लिए 1 के लिए इतना है, तो फिर इतने के लिए कितना, तो q डैश इक्वल q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब इंटू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब. 4 अपॉन 3 पाई r कैंसिल हो जाएगा,
तो ये वैल्यू हमारे पास में क्यू डैश आ गई। नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ क्यू डैश इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इसकी जगह रखना है हमें। तो फिर क्या आएगा देखेंगे। तो बाई यूजिंग इक्वेशन कौन कौन सी, बाई यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, बाई यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, बाई यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, तो what will be result? This is E equal Q dash upon 4 pi R square. Then E equal Q R cube upon capital R cube into 4 pi epsilon naught R square. But R square is cancelled out. So E equal QR upon में 4 pi epsilon naught R cube. This is electric field intensity inside the non-conducting charge sphere. This is equal to equation 5. So in this situation we can write inside के लिए this is E proportional R, क्योंकि यहाँ E और R सेम मैनर में है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, और उसका रिजल्ट ये आया। क्लियर? नाउ we can draw a graph between electric field intensity and distance. So graphical representation between graphical representation between E and R. Graphical representation between E and R. E and R कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, नंबर फर्स्ट, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, तब हमारे पास में क्या था? E equal Q upon V equal Q upon 4 pi epsilon naught R square. Clear? For outside, this implies for outside E naught, we take E naught, then E naught proportional R square. ये कब? When R is greater than capital R. But second, for surface ES, Q upon में 4 pi epsilon naught capital R square. This is implies ES constant. Clear? Now constant for surface. Now third is E inside. So what is the result? QR upon 4 pi epsilon naught R cube. In this situation, inside E in proportional R. तीनों जो केसेस हमने किए, उन तीनों केसेस के रिजल्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। Now, what will we graph for this? Suppose this is spherical, non-conducting sphere. This is center and this is origin. This is distance R. Electric field intensity E. This is equal to capital R. चलिए, बट जब तक पॉइंट इनसाइड है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है R की, तो फिर हम ये ग्राफ ऐसे ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इनसाइड चलेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इन प्रोपोर्शनल R, E इन प्रोपोर्शनल R
क्लियर? बट इन केस ऑफ सरफेस दिस विल बी ES, ये ES। बट फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या होगा, ये आउटसाइड, तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर ये हमारे पास में ग्राफ, ये पैटर्न इस तरीके से आएगा। तो फॉर E आउटसाइड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ग्राफ का पैटर्न क्या रहा, R एंड कैपिटल लेस देन R, यहां पर R कब रहा, जब ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ग्राफ पैटर्न इस तरीके से चलेगा कि जब तक हम सरफेस तक जाएंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर? लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे तो ES की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही आउटसाइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर के कारण, क्लियर? इन तीनों रिजल्ट से हम इस ग्राफ को जो है वो टैली कर सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वो क्या है देखिए, फॉर आउटसाइड ऐसा बिहेव है, तो ये आउटसाइड के लिए ऐसा बिहेव हो गया। फॉर इनसाइड प्रोपोर्शनल है, तो इनसाइड के लिए प्रोपोर्शनल है, तो E इन प्रोपोर्शनल R हो गया। सरफेस के लिए जो है आपके पास में कांस्टेंट रहती है वैल्यू सरफेस के लिए, तो ES ये सरफेस के ऊपर। इसका मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर होती है, वो सरफेस पे होती है, क्लियर? अब नाउ ये आपके पास में एग्जांपल है एक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा रो कैसे लिख सकते हैं, तो फॉर आउटसाइड देखिए, दिस इंप्लाइज E नॉट इक्वल Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब डिवाइड बाई what is this 4 pi epsilon naught R square, but this is rho, then in this situation we can write E naught equal rho 4, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया R क्यूब रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये है E नोट की आउटसाइड रो की टर्म में। इन सिमिलर वे यू कैन राइट फॉर ES, ES दिस इंप्लाइज ES इक्वल, हाउ कैन यू राइट, Q अपॉन अगेन Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब upon 4 pi epsilon naught capital R square. In this situation, again we can write this term as rho, then ES equal rho into 4 से 4 cancel, 3 से 3 cancel, 5 से pi cancel, and R square, this is capital R. So result will be rho R upon 3 epsilon naught. This is electric field intensity in terms of rho for surface, but in case of inside, again we can write as E in equal Q upon 4 upon 3 pi R cube into 4 upon 3 pi R cube divide by 4 pi epsilon naught R cube, 4 pi epsilon naught R cube. So for inside, how can you write inside, and this is equal to small r. Again we can look here, Q upon, मैंने इससे डिवाइड कर दिया, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन ये टर्म थी उसको यहां लिख दिया, इनटू में r, वो r आ गया। अब what is this? This is rho. तो अगेन E in इक्वल रो इनटू 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, क्या रह गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रो। तो अगेन वी कैन ऑब्जर्व हियर दैट फॉर आउटसाइड we can write in terms of rho ऐसे, in terms of
चार्ज ऐसे लिख सकते हैं। फॉर सरफेस चार्ज के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही इनसाइड के लिए चार्ज के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं और इनसाइड के लिए रो की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो गया ग्राफ, ये रिप्रेजेंटेशन कि जब हम जैसे जैसे स्फीयर के सेंटर से इनसाइड चलते हैं तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और जैसे ही सरफेस पे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जैसे ही आउटसाइड जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इसको, इन तीनों जो कंडीशंस हैं, इसकी चार्ज फॉर्म और रो फॉर्म, इसको हम जो है वो नोट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिएगा। क्लियर? Now we take another article is force experienced by a charged conductor. Force experienced by a charged conductor. क्लियर? फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज कंडक्टर। इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में है कि हमारे पास में ये कोई एक सरफेस है। क्लियर? इस सरफेस को यदि हम चार्ज दें, इस सरफेस को यदि हम चार्ज दें तो ये जो सेम चार्ज आएगा ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने छोटे छोटे पार्ट्स में, ऐसे ही ये जो पार्ट्स हैं इन पे सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से जो है इन पर एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से जो है इस सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो फिर ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन ऐसे भी आ सकता है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज कंडक्टर, और ये ऐसे भी आ सकता है कि हाउ विल यू डिराइव ए फोर्स प्रेशर exerted by a charged conductor. So how can we derive this formula of force? Clear? So now we take, this is a surface having charge डेंसिटी सिग्मा। ये कोई हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर चार्ज है और सरफेस टू चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। क्लियर? बट वी टेक दिस सरफेस, वी टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। ये कोई एरिया एलिमेंट ds है AB। This is area element ds. Then we can, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सरफेस मैंने कंसीडर की है, ये सरफेस दो तरह की सरफेस से मिलकर के बनी है, एक AB एंड अनदर इज ACB। AB और अनदर ACB। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट इज P और दिस पॉइंट इज Q। Point P lies outside the conductor and point Q lies inside the conductor. Clear? Then what will be electric field intensity at point P and at point Q? तो ये फिगर जो है आप बना सकते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है
और ये एक सरफेस है, इस सरफेस को हमने दो पार्ट में कंसिडर किया है, एक ए बी और एक ए सी बी, तो इसे हम नोट कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पी पॉइंट पर कितनी होगी, तो इसके लिए हम लिखते हैं वी कंसीडर एन imaginary surface having surface charge density rho sigma clear? So the electric field intensity at point P due to hole charged conducting surface। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था और वो आर्टिकल क्या था, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। ये आर्टिकल आया हुआ है, तो वी कैन राइट E equal EP, this is equal to sigma upon epsilon naught। This is equation first। Due to complete surface, electric field intensity at P will be E equal EP sigma upon epsilon naught। Clear? Now, if we assume ये सरफेस दो सरफेस से मिलकर के बनी है, एक AB और एक ACB, then what will be electric field intensity due to both surface at P? तो देखिए, if we imagine the surface to be made up of surface AB and surface ACB, then electric field intensity at P due to both surfaces EP equal, this is equal E1 plus E2, clear? Due to AB, this is a small area element, तो फिर इसकी इस एरिया एलिमेंट है ये BS है, तो P की वजह से इस AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज E1, क्लियर? कितनी कंसीडर की? E1, किसकी वजह से? AB की वजह से। बाकी पोर्शन कितना रह गया? ACB, इसकी वजह से इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? सपोज कीजिए E2, क्योंकि किसी भी एरिया एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, तो फिर इस P पॉइंट पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये परपेंडिकुलर और बाकी ACB की वजह से भी परपेंडिकुलर, तो एट P हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो E1, दिस इज इक्वेशन सेकंड। व्हाट इज E1? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सरफेस DS और AB, चार्ज सरफेस AB, E2
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सरफेस ACB। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। E1 किसकी वजह से? इस AB की वजह से। E2 किसकी वजह से? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरफेस मींस ACB की वजह से। ACB क्लियर? But by using first and second, result will be E1 plus E2 equal sigma upon epsilon naught। देखिए ना क्या किया है, यहां से EP की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कहां पर पुट कर दिया? इस EP की जगह पुट कर दिया तो E1 plus E2 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? थर्ड। तो फिर मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं। हमें इसकी सरफेस पे, ये एक कंडक्टिंग चार्ज सरफेस है, इसके के ऊपर कितना जो है फोर्स लगता है या कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है ये कैलकुलेट करना है। क्यों लगेगा? क्योंकि हम इसको डिफरेंट स्मॉल सरफेस में कंसीडर कर लें तो प्रत्येक चार्ज सरफेस दूसरी चार्ज सरफेस की वजह से क्या होगी? रिपेल होगी। उससे मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस? फॉर दिस, इसके लिए हमने ये कंसीडर कर लिया। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। इसको हमने AB और ACB में कंसीडर कर लिया। तो वी कंसीडर एन इमेजिनरी सरफेस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू whole charge conducting surface E equal EP equal sigma upon epsilon naught. Clear? This is in single way. But if we assume it in double way, what is double way? कि इसको हमने AB और ACB में कंसीडर कर लिया, तो फिर इसी पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू सरफेस AB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो और ड्यू टू सरफेस ACB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हो, then you can write for point P EP equal E1 plus E2. This is equation second. But for first and second E1 plus E2 equal sigma upon में एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप इसे नोट कर सके, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट बात क्या आती है? पॉइंट Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q EQ equal 0. This is equation 4. Why? हमने गॉस लॉ में जो है एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, किसी भी स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ये कंडक्टिंग सरफेस है कि नहीं? चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है तो इसके इनसाइड एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है, तो Q पॉइंट इनसाइड है तो EQ इक्वल 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, बट इफ वी कंसीडर AB और बाकी सरफेस ACB की वजह से यदि हम लिखना चाहें, बट EQ पॉइंट के ऊपर देखिए, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मानी? E1 इतनी कंसीडर की है। इसका मतलब इस सरफेस के, सपोज दिस इज सरफेस, चार्ज सरफेस, और एक पॉइंट P यहां है, ये AB पोर्शन है, सपोज दिस इज AB पोर्शन, पॉइंट P lies at here, then electric field intensity will be perpendicular to this surface. But if a point lies at in this side, then the direction of electric field intensity will be in this manner. Then we can write for this surface electric field intensity which is E1, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जो है वो E1 इसके ठीक इस साइड में होगी। This is E1. क्लियर? लेकिन जो रिमेनिंग सरफेस ACB है, रिमेनिंग सरफेस ACB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो E2 कंसीडर कर रही है, उसकी डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां Q पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है
जीरो है, तो फिर ये जीरो कब बने, जब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो फिर हम ये लिख सकते हैं, बट ये क्या इंडिकेट करता है, बट E1 इक्वल E2, दिस इज इक्वेशन 5। Q पे EQ की वैल्यू जीरो तभी पॉसिबल है जब E1 AB सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो फिर दिस इज इक्वेशन 5, इस लॉजिक से ये बात आती है। तो 5 की वैल्यू किस में पुट कर दें, हम थर्ड में पुट कर दें। तो फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ by using third and fifth, तो what is result, E2, E1 की जगह E2 पुट कर दिया, E2 प्लस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2E2 इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन कितनी हुई, दिस इज इक्वेशन 6। तो नोट करते जाइएगा और इनको लॉजिकली देखते भी जाइए।